Don't forget to like, subscribe and share the videos. Also, मैं अभी क्विकली कार्ड्स फिनिश करूंगी, मेरे को जो बताना है वो बताऊंगी. I will tell you about the course and then we are free to do our readings. Three readings which I'm going to do for all of y'all, any of y'all, and then your questions. Clear? Let's get started. Sure. So, the suit of pentacles. The pentacles denote अर्थ एनर्जी. अर्थ एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अर्थ एनर्जी का मतलब यहाँ पे ग्रोथ भी होगी. अर्थ में क्या क्या होता है? अर्थ में तो सब कुछ ही होता है. प्रॉपर्टी, मटेरियलिज्म, अशरफियां, गोल्ड कॉइन्स, ये सब कुछ अर्थ में मिलता है. अर्थ ऑल्सो शोज स्टेबिलिटी एंड एट द सेम टाइम स्टक एनर्जी. धरती कहीं हिलती नहीं है तो वो स्टेबिलिटी दिखाती है, लेकिन अर्थ में मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इसीलिए वो स्टक भी होती है. ये जो है ना, मैं ठहरा रहा धरती चलती गई, सिर्फ शाहरुख खान के साथ उसकी मूवीज में होता है, रियलिटी भी नहीं होता. ओके, सो अर्थ डजंट मूव, hence it provides stability. Ace of Pentacles, an offer related to materialism, something about security, a new offer coming in, materialistic offer coming in. Relationship में could be someone who is giving you a security in relationship. The Two of Pentacles, as I said, two is all about duality. ये कार्ड बताता है कि your hands are full of options. There's a lot on your plate and your platter, which is probably confusing you. You have a choice कि मैं A को चुनूं या B को चुनूं, इसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं. The Three of Pentacles. This card says आपके नाम के डंके बजने वाले हैं. There is a lot going on around you. You are going to be valued for the position that you have in life. Four of Pentacles. Four of Pentacles is a card which is a very stuck energy. Someone who loves money, someone who lives for money, someone who dreams money all the time. Because उसके सर पे, छाती पे, पैरों पे, सब जगह सिर्फ और सिर्फ पैसा है. Five of Pentacles, by far one of the worst cards to get and draw in the tarot deck is the Five of Pentacles, because ये loss बताता है, poverty बताता है. Poverty in each and every manner, whatever the question comes. Okay, it could be physical, mental, emotional, spiritual, financial, but poverty. Six of Pentacles. Six of Pentacles is the complete give and take of money, energy, exchange, whatever. Import export के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है. Seven of Pentacles. Seven of Pentacles is like मैंने कहीं पे investment करी है. It could be shares, it could be my time, it could be whatever, and I'm waiting for my results to come. जैसे हम लोग ने एग्जाम्स दे दिए और हम लोग वेट करते हैं यार एग्जाम के रिजल्ट्स कब आ जाएंगे. एग्जाम के जैसे आप लोग वेट करें, हम लोग इतना सब सुन तो रहे. There are few people who have just come here for readings. इनको टैरो से कोई लेना देना नहीं है. They are like 2 घंटे हम जो वेट करेंगे, मैम को म्यूट पे रखेंगे, the moment she starts reading हम प्रकट हो जाएंगे, मैम हमारे लिए रीडिंग कर दो. So they are waiting for that time. हमारा टाइम कब आएगा हमारा. So same way people who are waiting for their time, कब आएगा टाइम्स. Eight of Pentacles, someone who is a hard working person. जैसे बोलते हैं ना, एक मास्टरपीस क्रिएट करना, हार्ड वर्क करना किसी चीज के पीछे, दैट इज दिस. लगन में काम करना और किसी की लगन में अपने आप को भूल जाना. Nine of Pentacles, a very beautiful card when it comes to richness, when it comes to luxury, when it comes to having it all. Paisa is like very prominent in this card, and hence security of paisa. Ten of Pentacles is like छप्पड़ फाड़ के पैसा, हर जगह पैसा, जहां हाथ लगाओ वहां पे पैसा. जैसे कि वो जहाँ पे आईटी की रेड्स होती है ना, जैसे वो मूवी थी स्पेशल 26, वो जहां हाथ डाल रहे वहां से पैसा निकल रहा है. So that is the Ten of Pentacles. जहां हाथ डालो वहां पे पैसा. Page of Pentacles. What does the page say? Page is a messenger. Page is a child. So message regarding money, regarding security, regarding materialism, something to do with money. Knight of Pentacles. Now since this horse is black, I said जो horse करेगा वो यहाँ पे knight कर रहा है, horse खड़ा है, stationed है. So monetary gains or the money is very much stationed. There is no movement that we can see in this card. Hence, अगर कोई आके क्वेश्चन करता है क्या सामने वाला मुझे पैसे देगा, और जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आएगा, I say no, because वो मूवमेंट ही नहीं करेगा. There is no kind of movement happening. Queen of Pentacles, someone who has it all, the best of both the worlds, who earns very well and who knows to enjoy the comforts of money at the same time. Last card for this suit is the King of Pentacles.
ही इज द मनी किंग, जैसे कोई जामींदार होता है, कोई फाइनेंसर होता है, समवन हु हैज मनी एंड हैज एन एरोगेंस अबाउट इट कि मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। वो बीच में नहीं, वो कपिल शर्मा के शो पे दिस गाय यूज्ड टू कम, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, इट वाज जस्ट द सेम गाय, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास दुबई में घर है, इधर घर है, उधर घर है, समवन हु इज वेरी वेरी वेल टू डू। Coming to the last suit of the tarot deck, which is the cup suit. Cups यानी कि emotions, यानी कि water, something to do with softness, something to do with our emotions, इसलिए sensitivity, इसलिए as the last deck that I picked up, मुझे sword से tarot खत्म करना पसंद नहीं है। Swords is a little heavy energy, a little dry energy, क्योंकि आप अगर देखो elements को कैसे समझोगे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड एलिमेंट्स? अब लगा लो आपके सामने एक ऐसा बड़ा सा कुछ है और आप उसके ऊपर गिर गए और आपको लगी हवा, हवा से क्या टूटेगा आपका? कोई हड्डी टूटेगी, कुछ होगा? एटदम सबके गाल ऐसे से हिल जाएंगे। यू सीन पीपल डूइंग बंजी जंपिंग, तो उसके गाल ऐसे फटफट फटफट हिलते हैं, दैट्स अबाउट इट, उसके आगे कुछ भी नहीं होता उसका। तो हम क्या कहते हैं, हवा कैसी हो रही है? खुश्क लग रही है। व्हेन दिस एयर क्या होती है? एयर ड्राई होती है, ठीक है। ये फायर कैसा होता है? अग्नि कैसी होती है? अग्नि गर्म होती है। आपको ऐसे कहीं पे कुछ लग जाए गर्म सा, हम लोग कहते हैं चटका लग गया, मेरी स्किन जल गई, तो जलन, गुस्सा, है ना, ये सब अग्नि से आता है। धरती पे क्या होता है? आपने किसी ने सुना है कि मैं धरती को टकराई, धरती टूट गई? तुम टूट जाओगे, धरती को कुछ नहीं होने वाला। तो धरती कैसी होती है? हार्ड होती है। पैसे कैसे होते हैं? कोई कॉइन्स को तोड़ सकता है, नोट को मरोड़ सकता है, दे आर हार्ड। अभी जो फ्रेश नोट्स गवर्नमेंट से आते, कभी उसको ऐसे हाथ लगा के देखो, ये कट जाएगा हाथ तुम्हारा। सो पेंटिकल्स आर हार्ड, द अर्थ इज हार्ड। हाउ डू यू से? एनीबडी सेज इजी अर्न्ड मनी? एनीबडी? वेला बैठ के रेंट भी कमा रहा होगा ना बंदा, मेरी मेहनत का पैसा है, हार्ड अर्न्ड मनी बोलते हैं। क्या कहते हैं फिर? क्या कहते हैं? हार्ड कैश, है कि नहीं है? सो इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड टू हार्ड। भाई बहुत मेहनत करी है, वर्क माय, व्हाट डू यू से? मैंने खून और पसीने की कमाई होती है। पसीना में समझते कौन खून बहाता है यार, तो बोलने में ऐसे ही आता है। एंड द लास्ट वन, वाटर। पानी कैसा होता है? पानी गीला होता है, यस। तो इट इज ऑलवेज सॉफ्ट। ऑल योर मॉइस्चराइजर्स विच मेक यू सॉफ्ट, ऑल योर हेयर कंडीशनर्स दैट मेक इट सॉफ्ट इज वाटर बेस्ड, मॉइस्चर बेस्ड, मॉइस्चर इज वाटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डाइवर्सिफाई और वी अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स। एंड एलिमेंट्स के सिवा ना आप जिंदगी में वास्तु समझ पाओगे, ना टैरो समझ पाओगे, ना न्यूमरोलॉजी समझ पाओगे। ऑकल्टिज्म का एक बहुत बहुत गहरा, बहुत बड़ा जो पार्ट होता है, वो होता है एलिमेंट्स, एंड स्पेशली वास्तु, विदाउट विच आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि चल क्या रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली, because tarot is based on astrology. एस्ट्रोलॉजी ना पूरी ऑकल्टिज्म का मदरबोर्ड है। हम कहेंगे कि हमने there are many people जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, they are fantastic tarot readers, I'm not saying a no, but that fantastic tarot reader when starts doing the astrological readings, the astrological aspects of tarot, they become fantabulous. You will always grow 2 notches higher अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशंस ऑफ टैरो आती हैं तो। बिकॉज बिना एस्ट्रोलॉजी के ना टैरो चलता है, ना न्यूमरोलॉजी चलती है, ना दुनिया में कोई चीज चलती है। एस्ट्रोलॉजी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, इज द मदरबोर्ड ऑफ ऑल ऑकल्ट फील्ड्स, एवरीथिंग। सो द एस ऑफ कप्स, कप्स यानी सेंसिटिविटी, फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग अबाउट द हार्ट ओवर माइंड, हार्ट ओवर मैटर। दिल से सोचना, हर चीज दिल पे लेके जाना। Ace of Cups, a beautiful feeling, something to do with a beautiful, soft, romantic energy. दिल की बात, इमोशनल क्वेश्चन। अब अगर एक बंदा आपसे अपनी जॉब के बारे में पूछना है कि मैडम मेरी जॉब में आगे क्या होगा, आपका दिल लग जाएगा। ग्रामर सही बैठती है। इमोशनल ऑफर आएगा, ग्रामर सही बैठती है। वो बोल कैसे? हाँ अल्पा, पॉसिबल ही नहीं है। यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड जहां पे आपको जॉब मिलेगी, जहां आप सोच रहे थे, चाह रहे थे
कि मेरे को जॉब मिले, वहां आपको जॉब मिल जाएगी, वैसी जॉब मिल जाएगी. It will be emotionally satisfying. So you have to twist the words depending on the question, depending on the area of the question. Next, two of cups. सांझेदारी करना. सांझेदारी का मतलब क्या होता है? If I am a good teacher, without a student मेरी क्या वैल्यू है? और एक स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उसके पास जब अच्छी टीचर नहीं है तो उसके पास क्या वैल्यू है? So it's always equal give and take. How? Like this. It's equal give and take. Whether a relationship, whether partnership, whether whatever. It's an equal give and take. Three of cups. Majjani life, party life. अब एग्जाम्पल मैं सुबह से बहुत काम कर रही हूँ. आई हैव हैड क्लाइंट्स बैक टू बैक, आई हैव हैड मीटिंग्स, आई हैव हैड व्हाटएवर, एंड आई टेल प्रीति कि यार मैं बड़ी थक गई हूँ. व्हाट विल शी से? हियर, टेक अ चिल पिल, थोड़ा आराम से बाहर घूम कर आ जाए. दिस इज दैट कार्ड कि आपने थोड़ा सा लाइफ में आराम भी करना चाहिए. डोंट मेक इट ऑल वर्क एंड नो प्ले. इट विल मेक यू अ वेरी ड्राई एंड बोरिंग पर्सन. सो लिटिल वर्क, लिटिल प्ले इज गुड. सो हैविंग थिंग्स अ लिटिल इजी इन लाइफ. द फोर ऑफ कप्स. वो एसएल वर्ल्ड की याद है एड, जब हम लोग छोटे थे? नहीं नहीं नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं. रिमेम्बर, उसको सब कुछ मिलता था, बोलता था मैं घर नहीं जाऊंगा. ये वो कार्ड. मेरे पास सब कुछ है, बीवी अच्छी है, बच्चा अच्छा है, काम धंधा अच्छा है, मैं फुक्कट का मुंह बना के बैठा हूँ. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. शादी पे चल, नहीं जाता. आई लव यू बोल, नहीं बोलता. अच्छा पैसे कमाने जा, नहीं जाता. बिना बात के मुंह फुगा के बैठने वाला फोर ऑफ कप्स. फॉर नो रीजन. भाई साहब का मूड खराब है बिना काम के, तो उसकी मम्मी क्या बोलेगी? तो पैदाइशी मूड खराब है, इसकी चाइल्डहुड प्रॉब्लम है. ठीक है. फाइव ऑफ कप्स. ये दूध गिर गया. अब बैठ के दूध को देख रहा है, शिट दूध गिर गया, मेरा 1 लीटर खराब हो गया. 1 लीटर में 50 रुपीज खराब हो गया. 50 रुपए कहा. भाई छोड़, दूसरा दूध मंगा, गैस साफ कर. नहीं, मुझे वही दूध पे रोना है. तो कुछ लोग होते हैं ना जो हर पुरानी प्रॉब्लम को पकड़ के रो रहे होते हैं और एक मैटर को च्युइंगम की तरह खींचते हैं. And as I said, black negativity. They are wearing negativity like a guard कि मेरे को negativity छोड़नी नहीं, जिसको जो करना है करो. Six of Cups, a card of nostalgia. किसी ऐसे को याद करना और ऐसे याद करना कि आप उसके बारे में सोच सोच के मन ही मन मुस्कुराते हो. Even if you're crying remembering that person, you're still smiling. So a card of nostalgia, a card of feelings of the past. Seven of Cups, शेख चिल्ली. अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे, मैडम ने 2 दिन का कोर्स किया है तो मैं तो अभी सीख गई हूँ, मुझे आता है, 2-3 यूट्यूब के वीडियोस देखूंगी, 400-500 का ऐसे व्हाट्सएप का कोर्स कर लूंगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये बनूंगी 3 दिन के अंदर टैरो रीडर, और 4th डे से मैं कमाना शुरू करूंगी, 15-20 हजार तो पर डे कमा लूंगी, 25-30 लाख हो गया, अगले महीने जाके मैं एक फ्लैट भी खरीद लूंगी. है कोई सेंस है इस चीज में? ना सर, ना पैर, ना मुंह, ना आंख. दिस इज दैट पर्सन. फिर जब उसको नींद से जगाएंगे ना कि भाई तू किधर, अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, शेख चिल्ली उसको बोलते हैं. मतलब हवा में कुछ भी चल रहा है, मतलब कोई भी डॉट्स कहीं से भी कनेक्शन बना के कुछ भी बन रहा है. राइट? तो someone who is in the air, someone who doesn't know what is the base, what is the ground. 8 of Cups. ये वो लड़की है जो शादी करते ही बोलेगी मैं मायके चली, तू मुझे मूवी नहीं देखेगा, मैं मायके चली, तूने मुझे आई लव यू नहीं बोला, मैं तो चली. ये बात बात पे धमकी देंगे, ड्रामा क्वीन. समवन हु, मतलब बोलते ना, वो कौन सी मूवी थी, जब भी मेट का एक डायलॉग, तो तू छूटते भागने की बात करती है, ये वो है. ठीक है. हाउ डज शी से? मैं तो जा रही हूँ. ये वैसे शी एंजॉयज, मैं तो जा रही हूँ. उसका भी बीच में बहुत सारा ट्रेंड भी चला था ना वो वाले डायलॉग का ऑन इंस्टाग्राम. दिस इज दैट. 9 of Cups. ये भाई साहब इज अ लाफिंग बुद्धा. सबको जो करने करो, मैं खुश हूं. आई एम लाफिंग, आई एम हैप्पी. ओके. ये दांत निकाल के स्माइल करेगा, जो है उसमें खुश है. दिस इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. समटाइम्स ये ऐसा कार्ड है जो आपने सोचा और आपको मिल गया, ड्रीम फुलफिल हो गई. तो जब भी ये कार्ड आता है, ऑलवेज से योर ड्रीम इज गोइंग टू कंप्लीट, फुलफिल इन नो टाइम. इच्छा पूर्ति का कार्ड. 10 of Cups. अ ब्यूटिफुल फैमिली कार्ड. फैमिली साथ में वेकेशन पे जाएंगे, फैमिली साथ में घूम फिर के अच्छे से, दे आर बेसिकली नाइस हैप्पी फैमिली, everything going beautifully well when it comes to the family. Then Page of Cups. Emotional बच्चा. A new relationship, puppy love.
वो जो नया नया होता है ना, बेबी जानो तुमने खाना खाया, हाँ जी मैंने खाना खाया, बेबी को लगा ओ, वो जो नया नया होता है वो यहाँ पे, दैट ओ हैपनिंग इज ऑल हियर, द बेबी सोना बाबू जी जी, जो हम लोग बोलते हैं व्हाट नॉनसेंस इज दिस, वो सब इधर है. ओके, इट्स ऑल ओवर हियर इन द पेज ऑफ कप्स. Knight of Cups. When the Babu Shona, it comes down to little better. Okay, a newly married couple. और ऐसे ऐसे जो जवाई ना, इनकी लड़कियों की मम्मियों को बड़े अच्छे लगते हैं. सुशील, सुंदर, टिकाऊ. बहू नहीं, जवाई. This is the masculine energy. Okay, so someone who is very sensitive, very loyal, very trustworthy, वो जिसको आपकी emotions की कदर होती है, basically वो इंसान है. Then the Queen of Cups, निरूपा रॉय. ये पैदा ही माँ बनने के लिए होती है. ये स्कूल में भी होंगे ना, 10 बच्चों की मम्मी बन के बैठ जाएगी. इसके ग्रुप में इसको बोलेंगे माता रानी. हर चिल्ड्रन विल बी द लकीएस्ट ऑफ ऑल. जिस टाइम पे जो बच्चा जो बनाने को बोलेगा, ये बना के देगी विदाउट अ फ्राउन ऑन हर फेस. मतलब घर के तार जोड़ के रखना इसका काम है. एंड शी इज लाइक, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे. और ये उसी का हस्बैंड है, किंग ऑफ कप्स. कमाता ही खाली बच्चों के ऊपर खर्चा करने के लिए, खुद कुछ नहीं. बेचारा दाल रोटी खा रहा, बच्चों को चिकन मटन फिश सब खिलाएगा. He'll be like, everything for my children, everything for my family. This is the kind of a guy which is the King of Cups. Now I'm explaining about a person because court cards is about a person. And with this, we finish the 78 cards of tarot. Now, coming to a few points which I need to explain to everybody. Sun card. Coming to a few points which I need to explain to everyone. How do you shuffle? शफल करने का, मैं वैसे वो ताश के पत्तों जैसा कभी जिंदगी में शफल नहीं करे, क्योंकि आधे कार्ड्स मेरे उड़ जाते हैं, आधे कार्ड्स मुड़ के पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और उसके बाद विद माय नेल्स आई कांट डू दैट स्टफ. और मुझे आता नहीं कि राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, आई डोंट गेट इनटू दोस थिंग्स. सो आई सिंपली शफल आइदर लाइक दिस इज माय वे ऑफ शफलिंग, or I shuffle like this. I mean, you all must have seen on my Insta, this is how I shuffle my cards. Okay, there are many people who cannot use both the hands at the same time, so this is the way you all will shuffle. Keep your cards here. तीन decks, तीन parts में उसको divide करके इसके एक के ऊपर एक रख के आप उसको फिर से ले सकते हो. So this is also one way of shuffling them. Shuffle तब तक करना है जब तक आपको एक white light ना लगे या cards ना बोले बहन मैं shuffle हो चुका हूँ, बस कर रहे. Either ways. Initially, if you say, मैम आपके तो कार्ड्स उड़ नहीं रहे, हमारे उड़ के बाहर निकलते हैं, मेरे भी हुए थे, मैं पैदाइशी टैरो रीडर नहीं हूँ. So please stop thinking, and only those people who are perfect with their tarot cards come on the video. So stop idolizing yourself कि मेरे कार्ड्स तो उड़ते हैं, मैं कहीं पे कम हूँ, कहीं पे ज्यादा हूँ. Never get into those kind of things. So if you're a beginner, go always very very slow. Don't go like धर सारे कार्ड्स उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे. Now starting from the start, how do you start? सबसे पहले you order yourself a good tarot deck. Okay. Now who do you choose as your mentor or your teacher is entirely up to you. I'm not going to utter a word about it because मेरा वो हक नहीं है बोलने के लिए, ठीक है? But please be authentic in your field as much as you can. Is my only request to you all, because you all are here and it's kind of my responsibility at that. So first things first, order yourself a deck. Even if you take a 500 रुपए का deck or you take someone's used deck, there is nothing absolutely wrong with it. They will be yours and they are your energy. So इसमें ऐसा नहीं है. ये तो वो बात हुई ना बोलने के लिए कि मम्मी ने कोई बच्चे को पैदा करा, बच्चा काला निकला तो मम्मी बोली नहीं abandon करो, ये मेरा बच्चा नहीं है. So whenever you order from wherever you order and whatever deck comes to you is always destined. That's the universe, how it goes. So accept it with open arms and be okay with it. What do you do the first thing after you get a deck? Please keep it in your temple. Okay, for 24 hours with अखंड दिया. This is what I always do. अखंड दिया लगा के 24 घंटे अपने कार्ड के डेक को अपने मंदिर में रख दो. Or your altar if you don't have a मंदिर or whatever. If you're in your periods, then you can always wait for your periods to get over and then. उसके बाद ही डेक खोलना, तब तक नहीं. To connect with your cards, you can keep them beside, not under, beside your pillow, heads up. So अगर ये मेरे कार्ड्स का heads up है, so this is how I will keep it near my pillow, not under my head. Okay, for a few nights is more than enough, and then you can open the cards. How do you deal with the cards on a daily basis? How do you keep them?
ये इस तरह का पाउच आप ले सकते हो, पाउच के अंदर यू कैन कीप अ फ्यू क्रिस्टल्स, प्लीज डोंट आस्क मी टू रिपीट देम, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, यू कैन ऑलवेज मेक नोट्स, सो लेट मी स्पीक एट माय पेस बिकॉज वी हैव अ लॉट टू कवर. ओके, सो black tourmaline for protection, amethyst and labradorite for your intuition. Labradorite and black tourmaline again gives you grounding, and citrine gives you happy, it's a happy crystal. अबंडेंस के लिए आप चाहते हो कि आप उससे कमाओ. सो एनी ब्लेस्ड मनी दैट यू हैव, ब्लेस्ड मनी माने हम जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे इन लॉज होते हैं, दिवाली के पैसे मिलते हैं, जो ब्लेस्ड पैसे होते हैं ना, जो हम कभी खर्चे नहीं करते, हम लोग उसको अलग से हमारे तिजोरी में रखते हैं, उस तरह के कुछ पैसे आप उसके अपने पोटली में रखो. इन दिस कीप अ फ्यू क्रिस्टल्स विच एंड वेरी स्मॉल साइज, बड़े बड़े ऐसे इसके अंदर मत रख देना, वेरी स्मॉल फॉर क्रिस्टल. यू कैन कीप आइडियल का पिक्चर, जैसे मैं माता रानी की फोटो हमेशा रखती हूँ, तो डिपेंड्स आप साईं बाबा को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उनकी आप पिक्चर वहां रख सकते हो इन द कार्ड्स along with it. Then some money or your first earned money, or you can always touch your parents' leg, feet and ask for some money for, as a blessing, and keep that with you. कैम्फर का 1 piece you should, 1 or 2 pieces, 3 pieces you should keep in your decks, because वो एक तो अच्छी fragrance भी देता है, protection भी करता है, and there are many more other reasons also. You should have a कपड़ा velvet का होता है. This is the velvet cloth that I use. Now you see this is the quite thick one, और ये काफी बड़ा भी है. तो ये इसमें ना वेलवेट में से पतले पतले से वो जो आप ऐसे स्प्रेड करने जाओगे ना, तो वो कपड़ा हिल जाता है ना, तो वैसा नहीं लेना. टेक अ थिकर वन, एंड दिस हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ आल्सो, क्योंकि जो सेंटर के पॉइंट्स है ना, वहां से वो फटने शुरू हो जाता है. सो बट इट्स ओके, ऑलवेज यूज अ लिटिल थिकर क्लॉथ. जो ये जो फर के क्लॉथ्स होते हैं, जो आजकल सब लोग, मेरे पास भी है, which we use for the video purposes. तो everything that you see on the video, आप ऐसे उसको फैलाओगे, वो फर का यहाँ का वहां चला जाता है. So it's always that you see people do shuffle with their hands and then keep it on the fur. Okay, उस पे आप इस तरह से spread नहीं कर सकते. Then charging हो गया. Cleansing the cards. Any full moon, new moon, you can keep the cards out in the full moon or the new moon night. I prefer the full moon obviously, and बारिश नहीं होना चाहिए, तो आपके cards पूरे पानी में बह जाएंगे. That's obvious and logical. And if you cannot wait till full moon and you feel that your cards have already carried a lot of negative energy, heavy हो चुके हैं, shuffle नहीं हो रहे हैं, कड़क कड़क साथ में चिपक रहे हैं, तो any time where you see the sunrise, आपके घर में कहीं जो ईस्ट में आपके बालकनी से, विंडो से सनराइज, सन की रेज आ रही है, वहां पर आप क्या करो, एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लो, उसको नीचे बिछाओ, और डायरेक्टली सन पे नहीं, आपके कार्ड्स को वहां बिछा के कपड़े को उल्टा वापस से एक कवर लगा के, बिकॉज इट्स पतला कपड़ा, और दोनों बाजू वेट रख दो, तो कबूतर कभी आके नो उसको खराब ना कर दे, कोई लेके ना चला जाए. ओके, एंड वंस द सन इज रीच दैट 12 साढ़े 12 का टाइम, बिकॉज तब वो तीखी धूप हो जाती है, उनको उठा लो. अगरबत्ती दिखा सकते हो, क्रिस्टल्स रखोगे तो वैसे ही वो क्लेंजिंग हो जाएगी. सेलेनाइट प्लेट पे रख सकते हो, सेलेनाइट प्लेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्लेंजिंग क्रिस्टल. सो क्लेंजिंग डन, चार्जिंग डन, startup done. How do you keep your cards? Where do you keep your cards? Either जैसे मेरे पास, I have a proper library kind of a cupboard where I have kept my cards, so that is one thing. Otherwise what you can do is when you start, now since the way even I had started, so जहां आप सबसे ज्यादा time spend करते हो, for example on your bed, तो आपके बेड साइड पे जो ड्रॉर है, फर्स्ट ड्रॉर, आप उसको क्लीन करके वहां पे कार्ड का डेक और आपका ये जो कपड़ा है वो रख सकते हो. बट ट्राई कि जब आपको ड्रॉर में रख रहे हो, तो उस ड्रॉर में नेल कटर, कचरा, कटे हुए नाखून, कीले, नेल पेन्स, फालतू सामान ना हो. See, these cards are not just cards, they are your spiritual beings. आपको अगर किसी की लाइफ की, अभी आप बोलोगे मैम टैरो कार्ड से होता है क्या? See, there are many people over here who are readers, but at the same time there are many people here who are very unaware of what tarot can do. When someone comes to you for a reading, what is their mindset? अब बोलोगे मैम क्या है, एक क्वेश्चन में क्या ही पूछ लेंगे, बंदा आके बोलेगा क्या मैं जॉब छोड़ू या कंटिन्यू करूं, यू विल बी लाइक क्या है उसमें, तो छोड़ दे. कैन इट बी सो कैजुअल? सीरियसली नो. वो एक बंदा जो, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू हाउ सीरियस कैन दिस बी, इन व्हाट पोजीशन कैन यू बी ऑन. ओके, सबसे पहली चीज,
वो जो बंदा है, हो सकता है वो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके माँ बाप की दवाई का खर्चा, सब कुछ उस बंदे पे डिपेंडेंट है। और आपने बोल दिया हाँ तुझे नवी जॉब मिलेगी तो छोड़ दे, यू जस्ट मे बी कुकिंग फूड, ऐसे कार्ड निकाला, हाँ ठीक है तो छोड़ दो। Can't be so casual and that guy trusts you for whatever reasons. अब तो बोला वन क्वेश्चन है ना, कौन ज्यादा ध्यान देगा, चल वो ज्यादा रीडिंग पे आएगा, 5-6 thousand देगा तो मैं ज्यादा सोचूंगी, वन वन कार्ड इज 100-200, चलो जाने दो, वेरी कैजुअल। और उसने वो जॉब छोड़ दिया आपके बोलने पे, और उसको वो दूसरी जॉब नहीं मिली, उसके बच्चों की स्कूल की फीस, उसकी बहन की शादी, उसके माँ बाप की दवाई, फिर क्या करोगे? हो सकता है आपको ये सब सुनाई और बता कोई आके बताए भी ना, मे बी ही डजंट कम बैक, ही नोस। So your one yes no can be very very detrimental as a decision in someone else's life. Why is it so important? Because these cards are telling you what to do. You are just a messenger between the universe and that person. ये पानी है, I will drink water from where? From my mouth. मेरे गले का काम क्या है? Everyone, if you all have water around you, just pick up a glass or a bottle or whatever. If you don't have, you don't have. Whatever you have to drink, हाथ में पकड़ो, पानी पियो। मुंह में पकड़ के रखोगे, यू पकड़ के रखो मुंह में, आप में वो कंट्रोल है, मुंह में पकड़ के रख सकते हो। गले में पकड़ के रख के दिखाओ, गला बोले ना मैं नीचे फेंकता ही नीचा, पकड़ के दिखाओ, कोई पकड़ सकता है गले में? ठसका आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, जोर का आप खांस दोगे। क्यों? गले का काम क्या है? इट इज जस्ट अ पाइप। मुंह का काम है पानी लेके उसको पेट पे पहुंचाना, राइट? गले का काम इंटरफेयर करना नहीं है, गले का काम पाइप का काम करना है। यू जस्ट हैव टू वर्क लाइक अ पाइप, दैट्स योर जॉब। सेम वे यूनिवर्स से उस इंसान को मैसेज मिलना है, आप सिर्फ एक मीडियम हो, आप कुछ नहीं हो। ये जो लोगों को लगने लग जाता है ना कि मैं आई एम डिसाइडिंग समवन्स लाइफ एंड यूनिवर्स एंड आई एम बिकम गॉड, आई हैव सीन मेनी पीपल बिकम दैट एंड यू विल बी वेस्टेड विद इन नो टाइम, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट टू यू। सो दिस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आज नहीं, कल, 1000 साल बाद, जब भी you become something in this field, कुछ और याद रखो नहीं रखो, इस चीज को जरूर याद रखना, जब तक माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती है ना, आपकी बोली हुई चीज ना उसको लगेगी, ना सच होगी, ना कुछ होगा। एंड फॉर दैट you need to be cutthroat truthful, yet knowing that honesty is not the best policy always. Why? I can't stop, nobody can. Why honesty is not the best policy all the time? A lady called me a few years back and she said, ma'am, I need to talk to you before a book read. All right, call. I was, by the way, busy, free. I spoke to her. She's saying her husband is settled in US, UK for the last few months. He went there. It was an early marriage, I mean, new marriage, and he went there for some kind of work, some study. Sorry, he कोई sports करने के लिए गया था, और she is having a doubt कि he is seeing somebody. So she wanted to know कि does the husband have an affair with somebody or not? I said, why do you feel that? He doesn't give me time. I said, पढ़ाई करने गया कि रोमांस करने गया तेरे साथ? What is he going to do? No, I want to know. I said, I will not do your reading. And I even said, please don't go to any tarot reader because she will tell you a yes. Who can guarantee? कौन देख के आया लंदन? कौन गया 1 लाख रुपए की टिकट देके कि भाई तो जाके देखते तो आप बंदा अफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो एक कार्ड निकाल के देखते हैं रैंडम, उसका अफेयर है या नहीं? टावर, लॉस। नॉर्मल टैरो रीडर्स, अरे रे 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 अफेयर है, तेरी तो शादी टूटने वाली है, चलो चलो आई मेक यू हील योर रिलेशनशिप, 5000 का बिल और व्हाटएवर थाउजेंड्स का बिल। डज इट नॉट ऑल्सो मीन कि वो दिमाग उसका सोच सोच के खराब हुए जा रहा है एंड शी इज डिस्ट्रक्टिंग हर ओन लाइफ बाय हर ओन सेल्फ? उसी की सोच,
उसी का काम खराब कर रही है. Why is it a नुकसान only that the guy will have a relationship? अच्छा मुझे दिख भी गया, चलो मुझे दिख भी गया. This is how you do. Ever you remove a card, always shuffle the cards again to break that energy. है ना? मुझे दिख भी गया, चलो अफेयर है. मुझे इंट्यूशन हो गई, मैंने बंदे की फोटो देखे बिना मुझे मैसेज आ गया ही स्लीपिंग विद समबडी, उसको बोल के मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल ब्रेक 2 होम्स. एक वो लड़की का पप्पा का घर, एक वो लड़के के पप्पा का घर, है ना? व्हाट डू आई गेट? few thousands. And karma, few black holes. Right or wrong? So you need, देखो टैरो आपको कोई भी सिखा दे, ये इतना ही होता है. आप प्रैक्टिस कर करके 1 साल में बहुत फ्री रीडिंग्स करके सीख भी जाओगे कि एक एक कार्ड के 1000 मीनिंग्स कैसे निकालते हैं, कर जाओगे. बट ये जो प्रोफेशनलिज्म आती है ना, how to behave, how to talk, how to present yourself, how to do this, the small nuances you won't learn. That is why many people learn tarot but are not tarot readers. This is precisely the reason. All right. So let me first share with you what is this course all about. Next, I will do 3 readings for someone of you here, live readings. Okay. And then we will come to your question and answers, which then we can do arams. Everyone in with me? Yes. So first things first, Jagriti asked your question. जब तक मैं वो ढूंढूं मेरा PDF. हेलो मैम. मैम आई हैव अ Jagriti. क्वेश्चन. Yes. आपने बोला कि हमें नहीं बताना चाहिए कि हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर, बट वो हमारे पास क्वेश्चन लेके आई है तो हमारी ड्यूटी नहीं है. नहीं. बिकॉज हो सकता है कि आगे जाके उसका फ्यूचर खराब ही हो उसके साथ, वो अपना टाइम और स्पेंड करे एंड वेस्ट करे अपना टाइम. बेटा उसको डाउट आया रानी, शी इज नॉट 100% श्योर. और आप जब 100% श्योर हो जाओगे तो आप सामने वाले के दिमाग में खील ठोक दोगे. एंड हाउ कैन यू बी 100% श्योर इज माय क्वेश्चन. हाउ कैन यू बी 100% श्योर? दिस इज द होल थिंग. आप समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम. कोई 100% श्योर हो ही नहीं सकता. ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, कोई नहीं होता. ओके मैम. जागृति, Thank you're clear? you. Yes, ma'am. You're welcome. Chalo. Let me now share this course with you all. First thing, and then we will come to the question and answers. I just wanted to handle one question.